we were having a target to transfer all of these journal entries into cash book. Rule is very simple. You will seek only two elements, cash and bank. And rule is again very simple for transferring or for the posting. Debit do debit. Just keep it in mind. Debit do debit. Credit do credit. If cash and bank is debit, do post in debit side. If cash and bank is in credit side, just post on credit side. So hopefully you have understood. We will pick entries from journal entries, and from journal entries we will post these journal entries into cash book with the rule, if cash is debit, post on debit side. First entry we are going to post here. There are two elements, but only one element is in our favor, which is cash. Why I am saying in my favor? Because there are only two elements upon which we are focused, one of which is cash. So cash is written on debit side. What you will do, choose debit side, and there you will post the amount is 80,000. Next step is to see what reference has been given. Cash was debit. Why? Reference was to balance, so you will write in particulars that reference which was to balance, mention date, it's 1. So here first posting has been completed. Now somebody will ask why we are not transferring balance. So what I have said, only two elements we are interested with, cash and bank. Cash has already been posted, so don't bother about balance, don't bother about balance, don't bother about X, don't bother about A account payable, don't bother about sales. You will be focusing only two elements, cash and bank. Entry 1 has been completed. We will lock it down so that it cannot be repeated again. We are now on 1B where there are two elements, but we are been related with only one element, which is bank. Bank is credited. We will go to the credit side, we'll go to the bank column, and here you will write the amount of second entry, which is 2,70,000. Put 2,70,000 over here and see the reference, which is balance. Now here you will also write the balance with an additional word of buy balance, and here additional word was to, and here additional word is buy. Whatever the entry you will write over here, and everywhere on credit side you will use word buy. Here you have completed 2,70,000 entry number 1B. So here you will put the date 1B and lock it down as it has been completed. Give it a green signal. Since it's question number 5, we have already introduced this fact why we are just turning the color of this entry, because there are so many entries over here. When you will go to cash book, will come back, will go, will come back. So it may be possible some entries can be repeated. That is why we are marking the entries which we have posted to the cash book, so that that entry cannot be repeated again. We are on entry number 4A. चेक कर लें 1B कंप्लीट हो गई है. ओके, 4A में देर आर टू फैक्टर्स, बट ओनली फैक्टर 1 कैश is related to cash book. Cash is being debited 1,20,000. Go to debit side and write down 1,20,000 over here and see the reference, which is X. So you will write X as your account receivable because you are receiving your amount. Okay, date is 4B. Mention its date 4B. Okay, 4B is completed. Mark is as it has been done. Fourth, it was 1 second, it was 4th A. देखा, यही मैंने आपसे बोला था कि sometime it can be possible, entries can be misplaced. 4A हमने complete कर लिया. अब हम 4B के ऊपर हैं. वहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, but only one thing is related with cash book, that is cash. कैश डेबिट हो रहा है 1,60,000 से, तो आप यहाँ पर 1,60,000 डेबिट साइड पर लिखेंगे. अब इसका रेफरेंस भी आप चेक कर लें, विच इज़ वाई. नेम इज़ वाई. यू आर रिसीविंग कैश, सो इट इज़ अकाउंट रिसीवेबल.
mention its date, which is 4B. Write down the date for B, and hence 4B has been completed. Mark it as completed or lock it. Now we are on 5A. There are two elements, but only one element is related with our book, which is cash. Cash is credit, 1,20,000. Go to credit side of cash, write 1,20,000 on credit side of cash. Why? Because of A, account payable. Mention his name, A, which is account payable for us. Now write down the date, which is 5A. 5A date we are mentioning. In this way, 5th A entry has also been completed. Mark it. Now 5B, there are two elements, but we are related with cash only. Cash is credited with 1,60,000. Go to credit side of cash and write down 1,60,000 on credit side. Name is B, which is your account payable. Write down account payable. Okay, ब्रैकेट लगा देते हैं क्लोज करने के लिए. लेट्स सी द डेट 5B. write down the date 5B. So 5B is completed. Mark it as completed. We are now 10A. There are two elements, but only one element we are related with cash. Cash is debited with rupees 2 lakh. Go to debit side of cash and write down 2 lakh rupees. One thing you have noticed that we are putting amount at very first stage. First step is to put the amount. Do not write reference. Do not write anything else, but write down the amount at first step. In this way your amount will not be wrong. हाँ, ये जो चीज़ें हैं इट कैन बी प्लस माइनस, ये अगर कुछ आगे पीछे होता है तो एटलीस्ट योर आंसर विल बी करेक्टेड. लेकिन मैं ये नहीं आपको इनकरेज कर रहा कि इनको भी गलत कर दो, बट द प्रॉपर मेथड इज टू पुट द अमाउंट फर्स्ट, देन रेफरेंस, देन डेट. अब इस 2 लाख का रेफरेंस हम चेक करते हैं, वो है सेल्स. तो राइट डाउन हेयर सेल्स, और इसकी डेट भी आप चेक कर लें 10A. 10A पुट करें. अच्छा, ये ग्रीन लगाने का एक और भी फ़ायदा है. आप इस एंट्री पर, इस एंट्री पर, इस एंट्री पर देखेंगे ही नहीं. आप डायरेक्ट इस एंट्री को देखेंगे जो ग्रीन से अगली एंट्री है. इससे आपका भी फोकस साथ साथ में एक जैसा रहेगा. सो 2 लाख वाली एंट्री कंप्लीट की थी. डेट वाज 10A. It has been completed. Mark it as completed. We are now on 10B. There are two elements and both elements are related with the cash book. Why? Because bank and cash were two elements and both are related with the cash book. So there will be two entries over here. First, bank is debited with 2 lakh rupees. Go to debit side of the bank and write down 2 lakh rupees. Okay, and now write its reference, which is to cash. Write as cash. और डेट इसकी है 10B. मेंशन कर दें 10B. ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया. What we have done, we had debited the bank account and cash is credited. It is also related to cash book. Cash credit, we will go to the credit side of cash column and there you will write the amount, which is 2 lakh. Put 2 lakh on related column. Okay, अब इसका रेफरेंस चेक करते हैं. रेफरेंस अगेन इज बैंक, बट यू विल यूज बाय. अब इसकी डेट भी हम चेक कर लेते हैं, विच इज़ 10B. तो आप यहाँ पर 10B लिखकर एंट्री कंप्लीट करें. एंट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड. लॉक इट डाउन. अब नेक्स्ट एंट्री इज 12. वी हैव टू एलिमेंट्स, Y and B. Oh, that's very interesting. We have entry Y and B. Neither cash is present in this entry nor bank is present in this entry. It means both debit and credit is not associated with the cash book. You will skip that entry. Please try to understand. We are focusing upon two major aspects, cash and bank. And now in this entry, both are absent. That is why we are not posting this entry into cash book. In case of
Absence of cash and bank, you are not required to post entries in cash book. It means it has already been completed. बगैर लिखे ये कंप्लीट हो गई. अब आप चल रहे हैं 16A के ऊपर. देर आर टू एलिमेंट्स एंड ओनली वन एलिमेंट वी आर रिलेटेड विद, दैट इज बैंक. बैंक इज क्रेडिट. गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक और उसकी अमाउंट पहले आप पोस्ट करें. 10,000 है. राइट डाउन 10,000 ओवर हेयर. अब इसके रेफरेंस की बारी है तो एंट्री में जाएं. रेफरेंस स्टेशनरी है, यहाँ पे पुट कर दें स्टेशनरी. अब इसकी डेट की बारी है और डेट है स्टेशनरी की 16A. यहाँ पे आप इसकी डेट लिख दें 16A और इस तरह से एंट्री कंप्लीट हुई 16A की. इसको आप मार्क कर दें. हम क्या कर रहे हैं या थोड़ा सा मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा. दीज आर जनरल एंट्रीज. वन बाय वन वी आर पिकिंग दीज जनरल एंट्रीज एंड वी आर पोस्टिंग दीज जनरल एंट्रीज इनटू द कैश बुक. रूल इज़ वेरी सिंपल. इफ़ कैश एंड बैंक इज डेबिटेड वी विल पोस्ट हेयर. इफ़ कैश एंड बैंक इज क्रेडिटेड वी विल पोस्ट ओवर हेयर. The procedure is very simple, though it has a length, but doing it is very interesting for me at least. अब हम 16B कर रहे हैं. There are two elements, only one element we are related with. Cash हो रहा है credit, so we will go to the credit side of cash. Credit side of cash यहाँ पर आएंगे और अब इसकी amount हम post कर देते हैं 20,000 है. So we will write 20,000 ओवर हेयर. और किस चीज़ का ये 20,000 है? कैश क्रेडिट हो रहा है वेजेस की वजह से. सो यू विल गिव रेफरेंस बाय वेजेस और इसकी हम अब डेट पढ़ेंगे जो कि 16B है. आप यहाँ पे पुट कर दें 16B. हैंस 16B इज़ कम्प्लीटेड और आप इसको भी मार्क कर दें एज द कम्प्लीटेड एंड पोस्टेड एंट्री. आगे 18 है. अगेन देर आर टू एलिमेंट्स, ओनली वन एलिमेंट वी आर रिलेटेड विद कैश. कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है. वी विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. यहाँ अमाउंट पोस्ट करेंगे जो कि है 1,60,000. सो यू विल राइट 1,60,000 ओवर हेयर. अब रेफरेंस का देखते हैं. रेफरेंस इज़ व्हाट? P. So you will write 2P who was your account receivable. अब इसकी डेट भी आप साथ में मेंशन कर दें जो कि 18 है. यहाँ पर आप डेट लिखें 18. इट मीन्स एंट्री नंबर 18 हैज़ बीन completed. Mark it as done. Now 22 entry. There are two elements but only one element we are related with, that is bank. Bank is debited with 70,000. Go to the debit side of the bank, write down amount which was 70,000. Now see why 70,000 we are putting on debit side, because of Q. So you will post here Q who was your account receivable. Now see the date which is 22. पुट डेट ओवर है. आप देख रहे हैं ना, मैं अगर इतनी जल्दी उधर से वापस आ रहा हूँ तो उसकी रीज़न क्या है? वो ग्रीन से नीचे मैं बस फोकस कर रहा हूँ. आपने भी बस ये ग्रीन हो गया उससे नीचे फोकस करना है जिस एंट्री को करंटली हम कर रहे होंगे. इसकी डेट हमने 22 फिक्स कर दी है. एंट्री नंबर 22 हैज़ बीन कम्प्लीटेड. मार्क इट एज डन. 25A के ऊपर आएँ. देर आर टू एलिमेंट्स बट वी आर रिलेटेड विद ओनली वन एलिमेंट, दैट इज़ कैश. कैश इज़ क्रेडिटेड. गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैश. हम यहाँ पर आ गए कैश की क्रेडिट साइड पे. पहले एंट्री की अमाउंट देखते हैं, दैट इज़ 4,000. आप इसको 4,000 को यहाँ पुट कर दें. अब रेफरेंस चेक करें इस एंट्री का और दैट इज़ कैरेज. यहाँ वेन एवर यू विल राइट एनीथिंग यू विल यूज़ नेम बाय, यू विल यूज़ वर्ड बाय. और सेकेंडली राइट डाउन द रेफरेंस विच वॉज कैरेज. अब कैरेज की आप डेट है 25A. साथ में आप यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दें 25A. ओए क्या हो रहा है ये? शायद कर्सर कहीं और था. 25A डेट भी मेंशन कर दी. तो अब आपकी 25A भी कंप्लीट हुई. इसको भी आप मार्क कर दें एज इट हैज़ बीन डन. अब हम 25B पर. देर आर टू एलिमेंट्स बट वी आर रिलेटेड विद ओनली वन एलिमेंट, दैट इज़ कैश. कैश क्रेडिट हो रहा है 1,20,000 से. क्रेडिट साइड पे जाएं कैश की और वहाँ पर पोस्ट कर दें 1,20,000.
ओके, अब इसका हम रेफरेंस ढूंढते हैं। 1,20,000 में फर्नीचर ख़रीदा हुआ है, तो जस्ट राइट डाउन बाय फर्नीचर। अब इसकी डेट भी आप चेक करें विच इज़ 25B। यहाँ पर आप डेट लिख दें 25B। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 25B, मार्क इट एज डन। अब हम आ रहे हैं 30A के ऊपर। वहाँ पर देर आर 2 एलिमेंट्स बट वी आर रिलेटेड विद ओनली 1 एलिमेंट विच इज़ बैंक। बैंक क्रेडिट हो रहा है 3,000 रुपये से। गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक, राइट डाउन 3,000। नाउ लुक एट द रेफरेंस। 3,000 क्यों बैंक क्रेडिट कर रहा है? बैंक क्रेडिट हम कर रहे हैं इंसिडेंटल चार्जेस की वजह से। राइट डाउन द रेफरेंस इंसिडेंटल चार्जेस, सिंस वी हैव लिटिल स्मॉल स्पेस ओवर हेयर, सो अब मैंने इसको इंसिडेंटल लिखने की बजाय INC लिख दिया है। होपफुली यू पीपल वुड अंडरस्टैंड। अच्छा, ये इसकी डेट आप चेक करें, क्या डेट है? 30A। सो पोस्ट डेट ओवर हेयर 30A। ओके जी, 30A इज़ completed, mark it as done. Now we are upon 30B और सरप्राइजिंगली वी डो नॉट हैव अमाउंट। वाई? हम इसको रीड आउट दोबारा कर लेते हैं। क्यों नहीं अमाउंट लिखी थी, आपको याद करा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिटेड कैश ओवर 40,000, 40,000 से ऊपर वाला कैश जमा कराना था। अमाउंट विच इज़ मोर देन 40,000 वुड बी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। लेकिन हमें ये नहीं पता कैश कितना है। उसके लिए हमने क्या कहा था? वी विल कंप्लीट कैश अकाउंट एट फर्स्ट। अब यहाँ पर आकर आपने बैलेंसिंग करना है, यानी कि कैश अकाउंट को बैलेंस करना है और पता करना है हमारे पास कैश कितना है। और कैसे पता लग चलेगा? आप सारा कैश डेबिट साइड एक तरफ जमा कर लें, सारी कैश क्रेडिट साइड एक तरफ जमा कर लें। कैश डेबिट इज़ शोइंग हाउ मच कैश वी हैव रिसीव्ड और कैश क्रेडिट साइड इज़ शोइंग हाउ मच कैश वी हैड पेड। जितना रिसीव किया पेड से माइनस कर दें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। अब उसका एक तरीका तो आपका है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है और मैंने क्या काम करना है, मैंने सिर्फ इसको सम करना है। मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, मैं यहाँ एक्सेल से हेल्प ले रहा हूँ कि सम कर दो किसको, ये पूरे कॉलम को सम कर दो। आई हैव मैंशनड कि कहाँ से कहाँ तक आपने सम करना है। ये फार्मूले पे आपने ज़्यादा गौर नहीं करना, ये एक्सेल से रिलेटेड है, इट्स नॉट एन अकाउंटिंग थिंग। तो अगर आपको समझना है तो वी विल डील इट इन लेटर मोमेंट। यहाँ हमने क्या किया, वी हैव एडिड ऑल द अमाउंट्स प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश और उसका सम मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो कैश की क्रेडिट साइड है इसका भी सम करेंगे और जो अमाउंट्स प्रेजेंट हैं कहाँ से, कैश की क्रेडिट साइड पर। ये कैश की क्रेडिट साइड यहाँ से शुरू हो रही है, मैं सम करता जा रहा हूँ। सारी अमाउंट्स को सम करके मैंने नीचे इसका टोटल लिख दिया। ये मुझे क्रेडिट साइड का टोटल पता चल गया, ये डेबिट साइड का टोटल पता चल गया। अब मैंने क्या कहा था, दिस इज टोटल ऑफ डेबिट साइड, दैट मीन्स टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज दिस, टोटल अमाउंट पेड इज दिस विच इज सम ऑफ क्रेडिट साइड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों का जो फ़र्क है वो फ़र्क को देख लेता हूँ। उसका फ़र्क क्या होगा, वही हमारे पास जो कैश अभी तक पड़ा होगा। क्या मैं दोबारा बता रहा हूँ, दिस इज़ कैश रिसीव टोटल, दिस इज़ कैश पेड। जितना पैसा रिसीव किया है यू विल सब्सट्रैक्ट जितना पैसा पे किया। ये है पैसा, हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड इज 624, हाउ मच अमाउंट यू हैव रिसीव 720। तो यू विल सब्सट्रैक्ट दिस अमाउंट विच इज पेड फ्रॉम द अमाउंट विच यू हैव रिसीव वुड बी एक्चुअली द कैश इन हैंड। जितना पैसा आपके पास आया वो था 7,20,000, इसमें से माइनस कर दें जो पैसा आपके पास से चला गया। क्या मैंने बोला है, मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द टोटल अमाउंट यू हैव रिसीव्ड, you are subtracting what, the amount you have paid, the difference would be cash still in your hand, that is 96,000। ये है वो पैसे जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे ना कि पहले पता करें पैसे हैं कितने। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आपके पास जो टोटल पैसे हैं उनको चेक करें और ओवर 40,000, 40,000 से ऊपर कितने पैसे हैं वो बैंक में जमा कराने। नाउ यू हैव 96,000, तो 40 से ऊपर कितने हुए, आप 40,000 इसमें से माइनस कर दें, 40,000 यहाँ पर माइनस करके आपके पास अमाउंट है ये है 56,000।
ओके समझ में लगी बात. दिस इज योर कैश इन हैंड. अब 40 से ऊपर कितना है माइनस करके पता चला 56,000 एंड दिस अमाउंट इज नीडेड टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था यहाँ पर. और आप यहाँ आएंगे और क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करके आप 56,000 यहाँ पर लिख देंगे और इसकी जगह पे भी 56,000 यहाँ पर लिख देंगे. अब आपने क्या करना है, अगर आप मज़ीद समझना चाहते हैं रिवर्स करें वीडियो को और ये अमाउंट कैसे हमने कैलकुलेट की उसका आपको पता चल जाएगा. यू हैव सब्सट्रैक्टेड अमाउंट पेड फ्रॉम अमाउंट रिसीव्ड एंड द बैलेंस इज इन कैश इन योर हैंड. And how much amount is more than 40,000? You have subtracted 40,000 from 96,000. You have got 56,000. This is the amount over 40,000 and you have deposited into the bank. ये एक एंट्री पे देखें ग्रीन सिग्नल नहीं लगा हुआ, इसको अब हम करने लगे हैं. There are two elements over here and both elements are related with cash book. So first step is what? To post bank account. Bank is debited over here. Go to the debit side of the bank and write down the amount which is 56,000. Post it 56,000 and now give the reference which is to cash. Write down here to cash and now mention the date which is 30B. Write down 30B over here. So finally all entries have been completed. Mark it as done. अब हमारा काम जो है थोड़ा सा आसान है, कुछ हमने ऑलरेडी काम कर लिया हुआ है, इनको अब बैलेंस करना है. और बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, वही है पुरानी चीज़. यू विल सम अप कैश डेबिट साइड राइट ओवर हेयर, यू विल सम अप कैश क्रेडिट साइड राइट ओवर हेयर. दोनों चीज़ें, दोनों बैलेंस आपके पास आ गए. कंपेयर दीज बैलेंसेस. डेबिट साइड बैलेंस इज 720, क्रेडिट साइड बैलेंस इज 624. लार्जर बैलेंस यू विल पिक, bigger balance you will pick. तो bigger balance is 720,000. Write down 720,000 at total of debit side and write same 720,000 on total of credit side. Now here you will ask a question, when we have summed up all amounts present on credit side, the sum was 624 and instead of writing 624 I have written 720,000. So this is the step of balancing कि आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल, लार्जर टोटल वुड बी पुट डाउन ऑन बोथ साइड्स. अब आप कहेंगे कि ये तो 624 नहीं है, तो बैलेंस करना इसी को ही बोलते हैं कि जितना कम है you will write over here. It is called the balancing of a ledger. You have written 720,000 instead of 624,000. तो यू विल बी विलिंग टू कंप्लीट दिस फैक्ट कि इसका टोटल भी 720,000 आए. तो बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितनी अमाउंट कम है यू विल पुट ओवर हियर. एंड हाउ मच अमाउंट इज लेस देन 720,000? वेरी इजी. आप उसको 720 में से जो स्मॉलर अमाउंट है वो माइनस कर दें, वो आपके पास फ़र्क आ जाएगा. अब इस फ़र्क को 1 सेकेंड, यहाँ पर हमने ये वाली एंट्री कंप्लीट करते हुए एक पार्ट कंप्लीट किया था. वाइल वी हैव सेड कि बोथ एलिमेंट्स आर रिलेटेड विद कैश बुक. हमने बैंक वाले में तो पुट कर दिया, लेकिन कैश वाली एक एंट्री मिस हुई. अब इस एंट्री को पहले पुट करते हैं, फिर वापस अपने बैलेंस पे चलते हैं. कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड यू विल राइट द अमाउंट विच इज़ 56,000. नाउ सीक द रेफरेंस, लास्ट एंट्री थी और रेफरेंस बैंक है. यहाँ पर आप पुट करें बाय बैंक और इसकी डेट 30B है, वो भी आप पुट कर दें. आपको पता चल गया क्या हुआ है, एक एंट्री हमारी हाफ जो थी दैट वाज मिस्ड. हमने बैंक डेबिट कर दिया था लेकिन कैश को क्रेडिट नहीं किया हुआ था, तो हमें तब पता चला. अब आप इसका टोटल दोबारा देख लें, आपके पास टोटल क्या आया हुआ है, 680,000 इज़ योर टोटल. और दूसरा जो इस साइड का टोटल था वो आपके पास कितना आया हुआ है, दैट इज़ 7,20,000. देखें दोबारा आपने क्या किया है, यू हैव सम्ड अप कैश डेबिट साइड, टोटल हैज़ बीन रिटन ओवर हेयर. यू हैव सम्ड कैश क्रेडिट साइड एंड यू हैव रिटन टोटल ओवर हेयर. You will make a simple comparison, which amount is the larger or bigger amount, that is 720. You have written 720 over here and 720 over here. Here is the objection, when total of credit side was 680,000, why we have written 720,000? It is method of balancing. And how you will
clarify it, how you will justify it. Whatever the amount is less than that of 720,000, you will post over here. How much amount is less? Simple is this: total amount, the fake total, and then you will subtract the actual total. You will come to know only 40,000 were less. After this, when you will sum up this cash column, it would be exactly 720,000, and you will name it like balance, और इसको बाय बैलेंस के तौर पर आपने लेना है। आपने क्या समझा? ये डेबिट साइड का टोटल है, ये क्रेडिट साइड का टोटल है। बड़ा टोटल आपने इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है। अब ये बड़ा टोटल तो ये टोटल इतना तो आ नहीं रहा था, टोटल तो इतना था 6,80,000। तो आपने किया क्या? जितना कम था वो आपने अपनी तरफ से डाल दिया। और कम का कैसे पता चला? यू हैव सब्सट्रैक्टेड स्मॉलर टोटल फ्रॉम द बिगर टोटल। जो दोनों का फ़र्क था यू हैव रिटन ओवर हेयर, और उसका नाम आपने बैलेंस रख दिया। अब जिन लोगों को और मज़ीद समझना है, एक तो रिवर्स भी की जा सकती है वीडियो, एंड सेकेंडली आई एम डूइंग द सेम प्रोसीजर विद द बैंक। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे? बैंक की डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ओके, और ड्यू टू एक्सेल मुझे थोड़ी सी आसानी है, मैंने सम करना है तो मैं उसके लिए एक्सेल को ही बोलूँगा कि आप सम कर दो। यहाँ पर बैंक की ये डेबिट साइड है, मैं सम करता जा रहा हूँ, और जो यहाँ तक है, हालांकि आप देखें कुछ जगह खाली है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने उन सारी जगहों को फिल कर दिया जिसको मुझे सम करना है, एंड आई हैव गॉट द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट। अब उसके बाद आई विल कैलकुलेट सम और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक साइड। यहाँ पर ये तीन ही अमाउंट्स हैं जिनको आपने सम करना है, और याद रखिएगा आपने कैलकुलेटर पे करना है, तो तीनों अमाउंट्स को लिख के प्लस का साइन डाल के, जैसे आप यूजुअली प्लस करते हैं वैसे प्लस कर दीजिएगा। ओके, नाउ ट्राई टू फोकस। व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इज सम ऑफ डेबिट साइड ऑफ द बैंक इज दिस, sum of credit side of the bank is this. Second step is make comparison. You are making a comparison. This is 326, this is 283. Larger amount you will pick 326, and you will write 326 on total of both sides. Here you will write 326,000. Again objection, the total of credit side was 283, and instead of 283 I have written 326,000 here. ये जगह नहीं है इसकी। ओके, क्या किया आपने? यू हैव समड अप बैंक डेबिट साइड, सम इज 326, एंड यू हैव समड अप ऑल क्रेडिट साइड, that is 283. You have made comparison, 326 is the larger amount, और आपने 326 यहाँ पर भी टोटल में पुट कर दिया और 326 यहाँ पर भी टोटल में पुट कर दिया। Here is your objection, the total of this credit side was actually 283. How I have written 326 is some method of balancing. For the balance, what you will do, amount which is less than 326 you will write over here and will name it as balance. And how would we know how much amount is less than 326,000? What you will do, this is your fake total, and you will subtract the actual total. You will come to know the difference between 326 and 283, and you will write over here difference between larger amount and the smaller amount will be the balance. अच्छा, अब ये आंसर्स हमारे आ गए। कैश का भी आंसर हमारे पास आ गया, दैट इज़ 40,000। बैंक का भी आंसर आ गया, दैट इज़ 43,000। एक स्टेप हमारा बाकी बच गया है। ये जो बाय बैलेंस लिखा हुआ है, यू विल ब्रॉट इट डाउन दूसरी साइड पे, जो ऑपोजिट साइड है उस तरफ आप ब्रॉट डाउन करोगे। अभी ये बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। व्हाट यू विल डू, यू विल ब्रॉट डाउन ऑन डेबिट साइड, और जो आपने बैलेंस यहाँ पर निकाले हुए हैं वही बैलेंस आपने यहाँ लिखने हैं। पहला बैलेंस 40,000 का है, वही बैलेंस आप देखें यहाँ लिख दें, और बैंक का जो बैलेंस आया हुआ है वो 43,000 है, वही आप यहाँ लिख दें। दीज आर योर आंसर। कैश बैलेंस इज़ 40,000 एंड होपफुली दिस आंसर इज़ गिवन इन द बुक। लेट्स चेक इट आउट। ओके, आंसर इज़ हेयर, और यहाँ पर जो कैश बैलेंस आपको नज़र आ रहा है इट इज़ 40,000, और हमारा कैश का बैलेंस भी जो 40,000 है। लुक एट दिस, ये कैश का है और बैलेंस हमारा 40,000 है। इधर ये आंसर लिखा हुआ है कैश का 40,000। अब बैंक का भी चेक कर लेते हैं। बैंक का जो आंसर हमें गिवन है, बैंक बैलेंस लिखा हुआ है दैट इज़ 43,000,
अब आप यहाँ चेक करें, बैंक बैलेंस है 43,000, इसका मतलब आंसर ये भी ठीक है। ओके, थैंकफुली आंसर्स दोनों ठीक हो गए, किसी इंटरप्शन के बगैर, किसी इंटरफेरेंस के बगैर। होपफुली आपने भी इस चीज़ को एंजॉय किया कि हमने एक सीक्वेंस के साथ सारी जर्नल एंट्रीज़ को कंप्लीट किया, एंड देन वी हैव पोस्टेड दीज जर्नल एंट्रीज विद द सेम सीक्वेंस इन द कैश बुक एंड विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी रीचेकिंग। हमारे आंसर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने जब क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो प्लीज़ ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। एक दफ़ा उसको दोबारा चेक कर लीजिए अच्छी तरह से, कोई अमाउंट मिसप्लेस तो नहीं, कहीं ग्रीन नहीं है, कहीं चेक नहीं है। और चूंकि पेपर में आपको आंसर नहीं पता होगा, अब तो वी आर सेटिस्फाइड एज वी हैव कंपेयर्ड द आंसर दैट नथिंग इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग हैज़ बीन जनरलाइज्ड correctly, or every transaction has been posted into the ledger correctly. Hopefully you people have understood, but still after taking this much time, if you have any query about the question, you are please very open to ask your question by commenting, by texting, or even you can meet directly to ask the questions. We have solved this question number 5, and hopefully we will meet again for the solution of any of the other question, any of the new question. Until then, please take care of yourself, and I'm requesting to pray for me as well. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.